Hello my dear students. See, in P block element, let us discuss about the oxo acids of nitrogen. Okay. As we know that these two are well known oxo acid. This one is not known to you, but three oxo acids are there. First one is the hyponitrous acid, second one is the nitrous acid, third one is the nitric acid. Molecular formula is H2N2O2, HNO2, HNO3. Okay. So the question is asked in exam, give preparation. Sometimes only one, here written most important preparation only asked in 3 marks. Okay, so write down this question, give preparation and uses of HNO3. So if I include property in this question, then question answer becomes very lengthy. So in separate question we will discuss the physical and chemical properties of nitric acid. Okay, let us prepare nitric acid. This first one preparation method is the laboratory method. In laboratory, nitric acid can be prepared by heating either potassium nitrate or sodium nitrate. Or you can take either potassium nitrate or sodium nitrate, and we have to heat this compound, either this or this, with a sulfuric acid, and one special glass instrument is there. It is called glass retort. Glass retort is a specially manufactured instrument of glass. Okay. See, either potassium nitrate or sodium nitrate when react with a sulfuric acid, as we know that the first hydrogen of sulfuric acid is more acidic, so this sulfuric acid is ionizes into two parts. First one is the H plus and HSO4 minus. Okay. Second is ionizes like this, Na plus and NO3 minus. Now this Na plus and this HSO4 minus combine together, so one product is formed. It is NaHSO4, and this H plus and NO3 minus combine together, and this form HNO3. See, reaction is here. It's a laboratory method because the product is very less. The efficiency of reaction is not that much well. So in laboratory you can prepare by mixing these two in a glass retort. Very simple method. Second method is a very most important method asked in exam and already asked in board exam 2 or 3 times. Okay. On a large scale, means on an industrial scale, it is prepared by Ostwald's method. Ostwald's method. So this method is divided into 3 steps. In first step we prepare nitrogen monoxide. In second step we have to prepare nitrogen dioxide. So this complete method, in first step nitrogen monoxide by oxidation converted to nitrogen dioxide. This nitrogen dioxide with further oxidation it converted to HNO3. Okay. So simple, these 3 reaction, one reaction carry 1 mark and these 3 reaction carry 3 marks in exam. Okay. What are you writing, that is not important. You can use your own language, but 3 steps are important. First step, nitrogen monoxide to nitrogen dioxide. So prepare nitrogen monoxide, convert it into nitrogen dioxide, that convert it into nitric acid. Okay. So see here, in Ostwald method, this one is the first step in this method is based on catalytic oxidation. Catalysis में चाहिए. Without catalyst oxidation is not possible. See, here I have to convert this ammonia into ammonia nitrogen oxide. Here ammonia oxidation state is -3 and here nitrogen oxidation state is +2. -3 to +2 इंक्रीज बाय 5. इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेप में एमोनिया का ऑक्सीडेशन हुआ. तो ऑक्सीडेशन के लिए हमें क्या चाहिए? प्लेटिनम RH गोस. ये बहुत महंगा आता है. प्लेटिनम रोडियम गोस इज यूज्ड एज अ कैटालिस्ट. और ये जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है. और माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन. So you can balance it by using method of redox reaction. Okay. So otherwise stoichiometry is very easy. If your memory power is good, then remember stoichiometry of first step is 45, 46.
serial number 45, 46, otherwise balanced by using redox reaction method. See here oxygen here oxidation state is 0 and here oxygen oxidation state is -2. So 0 to -2 decrease by 2. So this oxygen is reduced while this ammonia is oxidized. So oxidation reduction reaction both are combined together. So it is called redox reaction. Okay. So 4 nitrogen converted into 4 nitrogen monoxide. This 12 hydrogen gives half number of water molecule. 12 hydrogen gives 6 water molecule, or you can calculate oxygen. 10 oxygen out of 10 4 is used. So remaining 6 oxygen gives the same number of water molecule. Okay, and temperature, pressure, everything you have to prepare exact. 500 Kelvin temperature, 9 bar pressure. Okay, let us move to the second step. By catalytic oxidation, in first step nitrogen monoxide is produced. Okay, see now this nitrogen monoxide take oxidation with further atmospheric oxidation. This is a reversible reaction. Okay, so this nitrogen monoxide further oxidized with all atmospheric oxygen gives nitrogen dioxide. Okay, see here how this is also redox reaction. In this case, see nitrogen oxidation state is +2. Here nitrogen oxidation state is +4. So +2 to +4 increased by 2. Further oxidation, but balancing is very easy. Okay, this odd oxygen converted into E1 first. Okay, then easily the complete reaction can be balanced. And this second step over adding third step. This one is the second step of Ostwald's method. This one is the third step of Ostwald method, in which nitrogen dioxide is formed. That we have to dissolve in water. Dissolve in water, and when we dissolve in water, we get nitric acid. Remember, my friend, we get nitric acid. Okay, nitrogen dioxide gas is dissolved in water, and then directly we get nitric acid. And here one good thing is, why this is industrial method, here the nitrogen monoxide is produced. This is the danger point here. Students forgot in exam to write this byproduct nitrogen monoxide. Okay, so nitrogen dioxide is converted into nitric acid as well as byproduct nitrogen monoxide, and this nitrogen monoxide is not waste product. It can be recycled, because in this step we require nitrogen monoxide for oxidation to produce nitrogen dioxide. So here in third step, the nitrogen monoxide produced, that nitrogen monoxide is recycled here. You can use here. Okay, this is also a redox reaction. So balance it. Okay, 3 nitrogen dioxide required, 2 nitric acid is formed. Okay, and 1 nitrogen gives us a nitrogen monoxide. Try to balance it by trial and error method. Let me give you one hint. Here 3 oxygen are odd, so convert it into E1. Write down here 2. So 2 HNO3. So oxygen when you balance, here is one nitrogen monoxide product that you have to prepare by your memory. Okay, then easily you can balance by redox reaction method. अप्लाई करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है. ठीक है, इसको पहले E1 में से ऑड में से E1 कर दो, बाद में सब कुछ इजी हो जाएगा. तो अब यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड HNO3 प्रोड्यूस होता है, उसके अंदर पानी है, क्योंकि हम उसको पानी में डालते हैं. तो ये उसको हमें कॉन्सेंट्रेटेड करना है. कैसे करना है? कॉन्सेंट्रेटेड. तो उसके लिए हमें डिस्टिलेशन करना होगा. डिस्टिलेशन करेंगे मतलब कि वाटर को बाहर निकालेंगे जो उसके अंदर है, तो हमें 68% वेट बाय वेट नाइट्रिक एसिड मिलेगा. अगर आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड चाहते हैं तो फिर और पानी जो उसमें है एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड में, उसमें से अगर आप और पानी निकालेंगे तो आपको 98% वेट बाय वेट जो है वो नाइट्रिक एसिड मिलेगा. ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन होता है कि ये जो डिस्टिलेशन है वो हम कैसे करें. तो ये डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ concentrated sulfuric acid. Question arises, why concentrated sulfuric acid? We know very well in 11th standard we studied that this
सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो पानी है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। दूसरा भी एक फास्फोरस पेंटॉक्साइड, लेकिन यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जितना कॉन्सेंट्रेटेड डालेंगे उतना ही हमें कॉन्सेंट्रेटेड वाटर ये एब्सॉर्ब कर लेगा, और बाय डिस्टिलेशन हमें 98% प्योरेस्ट मैक्सिमम 98% वेट बाय वेट नाइट्रिक एसिड मिलेगा। ये इसमें थोड़ा पानी रहेगा 32%, 68% वेट बाय वेट नाइट्रिक एसिड हमें मिलेगा। तो तीनों रिएक्शन ओसवाल्ड प्रोसेस के, ठीक है, ठीक से आप प्रिपेयर कर लो, बैलेंस करने की ट्राई करो, अपने आप स्टेप को अपने आप मेमोराइज करो कि पहले स्टेप में मुझे क्या करना है। तो पहले स्टेप में मुझे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बाय दिस रिएक्शन फॉर्म करना है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करना है। वो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है, कैटालिस्ट याद रखने, टेम्परेचर प्रेशर आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरे स्टेप में फर्दर ऑक्सीडेशन करना है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। तीसरे स्टेप में मुझे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करना है और मुझे नाइट्रिक एसिड मिलेगा। वो उसमें एक प्रोडक्ट मिलेगी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये बहुत ही डेंजर पॉइंट है बोर्ड की एग्जाम के लिए। ये जो प्रोडक्ट है काफी बच्चे भूल जाते हैं, बाद में यहाँ से प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। तो ये तीसरा रिएक्शन जो मेजॉरिटी रॉन्ग लिखते हैं, ठीक है। तो बाद में जो है आपको कितना कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए उस हिसाब से बाय डिस्टिलेशन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का आप यूज करके आप कर सकते हैं। इसके रिलेटेड एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द मोलारिटी ऑफ दिस नाइट्रिक एसिड। सो व्हाट इज द मोलार मास ऑफ नाइट्रिक एसिड? HNO3 मोलार मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 14, 1 प्लस 14 प्लस 48, तो ये कितना हुआ? 48 प्लस 149, 53, 63 ग्राम मोल इनवर्स। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए साथ में, ठीक है, कि आप उसकी मोलारिटी फाइंड करके दिखाओ, तो आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए HNO3 सॉल्यूशन की। तो उसकी डेंसिटी है 1.5 ग्राम पर ml, उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं, 1.5 ग्राम पर ml। अब आपको पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 63% वेट बाय वेट है, तो उसकी मोलारिटी बताइए। 63% वेट बाय वेट है, तो उसकी मोलारिटी बताइए, ठीक है। तो मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय मोलार मास, ठीक है। यहाँ पे 63 लगा दीजिए, डेंसिटी मैंने अभी आपको बोला 1.5, 10 डिवाइडेड बाय मोलार मास इसका 63। चलो फाइंड कर लो अपने आप, ठीक है। अब आपको ऐसा बोले कि 98% वेट बाय वेट की मोलारिटी बताइए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करिए मोलारिटी वाला। मोलारिटी इज इक्वल टू 98% वेट बाय वेट डेंसिटी 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय मोलार मास 63, तो ये मोलारिटी आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन ट्रैक कर सकते हैं कि जो परसेंटेज प्रोपोर्शन ओसवाल्ड मेथड में नाइट्रिक एसिड के मिलते हैं उनकी मोलारिटी आप फाइंड करके बताओ। तो ठीक है, आप जब थियरी प्रिपेयर करते हो तो आपको पता है कि पहला जो है वो 68% वेट बाय वेट, सॉरी यहाँ पे मैंने 63 लिख दिया, 68% वेट बाय वेट, ठीक है। दूसरा जो है वो 98% वेट बाय वेट। तो इस फॉर्मूला में आप वैल्यू डालेंगे तो आपको यहाँ जो आंसर मिलेगा वो आपकी मोलारिटी होगी, ठीक है। इसको भी साइड में एज अ कॉम्पिटिटिव पॉइंट करके नोट कर लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। देखो यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड में इतना आपको मैं परेशान नहीं करूंगा, डोंट वरी, क्योंकि बहुत इजी यूज है। तो देखिए स्क्रीन आपके सामने है, यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। सो चलिए सिर्फ डिस्कशन करके समझ लेते हैं। एक तो नाइट्रिक एसिड का यूज होता है ये फर्टिलाइजर एमोनियम नाइट्रेट। एमोनियम नाइट्रेट जो है फर्टिलाइजर में हम यूज करते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर में, और अदर नाइट्रेट्स। और ये जो सब नाइट्रेट्स है वो कहां पे यूज होते हैं? एज एक्सप्लोजिव्स, ठीक है, एज एक्सप्लोजिव्स होते हैं। और पायरोटेक्निक्स, कहीं पे अगर हीट प्रोड्यूस करनी है, स्पार्क देना है, ठीक है, सीन क्रैकर्स आप लोग पहले स्पार्क देते हैं, ठीक है, मैच स्टिक में जो स्पार्क आता है, तो ये सब
उसके अंदर हम नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं फॉर पायरोटेक्निक टू प्रोड्यूस हीट। ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। साहब ये बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव है। ये टीएनटी ट्राई नाइट्रोटोलुएन, ये दोनों वॉर में यूज होते हैं। बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोसिव है। ये जो आजकल टेररिस्ट यूज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप इससे उड़ा सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों नाइट्रोग्लिसरीन एंड ट्राई नाइट्रोटोलुएन, ये दोनों बहुत ही फैटल एक्सप्लोसिव्स हैं। और दूसरे ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड इसमें आप बना सकते हैं, वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन में पढ़ेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड है जो नाइट्रो कंपाउंड है। चलिए फोर्थ यूज के ऊपर चलते हैं। तो मेजर यूजेस इन द पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। जब स्टेनलेस स्टील बनता है तो उसके अंदर कोई मेटल की इंप्योरिटीज होती है, तो वो इंप्योरिटी हमें बाहर निकालनी, ठीक है। उस इंप्योरिटी को हमें सेपरेट आउट करना है, उसको बोलते हैं पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। और इसका मतलब ये भी होता है कि अगर इंप्योरिटी को लेफ्ट बिहाइंड करना है, सिर्फ स्टेनलेस स्टील को बाहर निकालना है, तो उसमें हम नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। इचिंग ऑफ मेटल, ये बहुत बड़ी बात है। मेटल के ऊपर कोई कंपनी का नाम आता है, जैसे आप कोई कार लेते हो तो ऊपर मेटल के ऊपर ही लिखा हो, कंपनी का जो नाम आता है वो लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो टू राइट द परमानेंट नेम, जैसे आप टैटूज करवाते हो वो आप स्किन के ऊपर इचिंग करवाते हो, ठीक है। सिमिलर वे ऑन मेटल इचिंग आता है, कंपनी का कोई लोगो बनाना होता है, कोई डिजाइन बनानी होती है, ठीक है, परमानेंट, वो कभी निकलती नहीं है, तो उसको बोलते हैं इचिंग ऑफ मेटल्स। और लास्ट वन इज ऑल्सो यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजर। आपको पता है कि फ्यूल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तो रॉकेट फ्यूल जो हम यूज करते हैं, रॉकेट फ्यूल, उसके अंदर ये ऑक्सीजन प्रोवाइडर होता है, सो इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल, ठीक है। In next lecture we will discuss regarding the physical and chemical properties of nitric acid, क्योंकि वो बहुत लंबी है, इसमें अगर हम इंक्लूड करेंगे तो थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।